morning students, how are you all? I hope all of you are fine and you are enjoying your studies at your home, and whatever we are giving you the work you are completing in your notebooks. And another thing students, today for some days I am going to take your classes. I will send you the link of the videos. Okay, you have to watch the videos properly, carefully, and watch the videos twice or thrice if you won't understand that, until you won't understand, and complete your whole work. And those students who are not having the textbook, please purchase your textbook, because more of the work has been done is done in your टेक्स्ट बुक. ओके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो है आपके टेक्स्ट बुक में फिल हो रहा है. अगर आप टेक्स्ट बुक परचेज नहीं करोगे तो क्या होगा, एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी. वो ये होगा कि आपको वर्क ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फेयर नोटबुक में करना पड़ेगा, है ना. सो इट विल क्रिएट यूर टू मच ऑफ वर्क ऑन यू. So we want to make a less work on you, that you should get the time to learn also, ताकि आपको पढ़ने के लिए भी कुछ टाइम मिल सके. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक that is related to the articles. आपको already मैंने समझा दिया है about the let's try 6. I have explained already. Now today we are going to learn about the let's try 7. Before moving to let's try 7, let us know what they have given in the let's try 7. See here students, in let's try 7 they have given you about the articles. Okay, क्या दिया है उन्होंने, आर्टिकल्स दिए हैं आपको. जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. अब आप कहोगे मैम ये डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं. बेटा आर्टिकल्स मेन, फर्स्ट लेट अस नो अबाउट द आर्टिकल्स. Okay, our topic is about the articles. The words a, an, and the are articles. Okay, are articles. See the students, articles कौन कौन से इसमें, a, an and the are what? They are articles. Okay students, already in previous class you have learnt about the articles. When you were in second class, third class, fourth class, you have learnt about a and the, and even you know that when we have to use the articles. Yes students, I hope you know that, but I am revising the whole thing again. So keep concentration, whatever I am explaining you, then complete your work. Okay, now let's see about the a, an and the. So see here students, a and an are indefinite articles. What they are? They are indefinite articles. Okay, wait a minute students. जैसे कि हम कह सकते हैं कि द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है. ओके, द इज द डेफिनेट आर्टिकल एंड ए and an is an indefinite articles. When we have to use a and when we have to use an and when we have to use the, we will now learn in this topic. Okay, we use a, an and the before the nouns. They are used before nouns. इनका उपयोग हम nouns के पहले करते हैं. यूज ऑफ ए और एन, यूज ऑफ ए और एन. अब देखो बच्चों, ये जो उपयोग होता है ए और एन का, जो उपयोग किया जाता है वो कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस. ए और एन मीन्स वन. ए और एन का मतलब होता है एक. ए और एन का क्या मतलब होता है, एक. ओके, ओनली वन, नॉट मोर देन वन, एक से ज्यादा नहीं. देन आफ्टर दिस इज वी यूज इट with singular countable nouns. Okay, a is used before common nouns, before
common nouns. A is used before common nouns that begin with consonant sounds, consonantal sounds, consonantal sounds, consonantal sounds. Example: a doll, a house, a fly, a dog, etc. Okay students, now let's see here first the use of a और and जो होते हैं इनका मतलब होता है क्या? एक. What do we mean? Means one. Okay. We use it with singular countable nouns. हम इनका उपयोग किसके साथ करते हैं? जो एक वचन गणनीय संज्ञा वाले जो शब्द होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं? ए का यूज मतलब ए और एन का यूज करते हैं. We use a और and with the singular countable nouns. And another thing, a is used before. a का उपयोग हम पहले करते हैं. किसके पहले करते हैं? कॉमन नाउन्स के पहले. अब आपको कॉमन नाउन के बारे में मैंने बताया ही है ना, जैसे कि बॉय, गर्ल, ये जो होते हैं ये कॉमन नाउन्स है. ओके, सो ए इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंटल साउंड, जिनका मतलब जो कॉन्सोनेंटल जैसे कि बी सी डी एफ जी एच. हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर? 21 consonants are there and remaining 5 are vowels. I hope students you know that this is a small thing that you should be know. ये बहुत ही छोटी चीज है. So consonantal sound यानी जो ध्वनि होती है, जो उनको बोला जाता है, उनमें जो स्वर आ रहा है वो क्या होना चाहिए? व्यंजन वाला स्वर होना चाहिए. ओके, next example I have written already here: a doll, a house, a fly, a dog, etc. Many are there. Okay, next is and now take the screenshot of the students. Yes students, now you can see here the use of an. अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? Use of an. So an is used before common nouns that begin with a vowel sound. I already said you that when we use a or an means before the singular countable nouns. Together with that, when a is used and when an is used, we are going to learn that. So I have already explained it. Now after this, an is used. an का उपयोग before पहले common nouns that begin with a vowel sounds. यानी एन का मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि एन का उपयोग हम तब करते हैं जब जब हम कोई शब्द का उच्चारण कर रहे हैं और उसमें वोवल साउंड आ रहा है, यानी जब ध्वनि जो है वो स्वर वाली है. मीन्स ए ई आई ओ यू जब हम बोल रहे हैं तो उसमें आ रहा है, जैसे कि अवर ओ यू आर एच ओ यू आर आ गया. उसमें एच जो है वो एक कॉन्सोनेंट हुआ, लेकिन जब बोल रहे हैं व्हेन वी आर प्रोनाउंशिएटिंग दैट देयर इज अ वोवेल साउंड इन दैट, सो इट इज आल्सो एट दैट टाइम वी यूज एन बिफोर एन अब. ओके, इन द सेम वे ऑनेस्टी, सो देयर इज अ ऑ, सो ऑ इज अ vowel sound here. In the same way, we can see some of the example: an aeroplane, so an ox, and dash a verb. I explained you about this, an a verb, an actor. In these way, when there are vowel sounds, when we pronunciate them, so we have to use an before the common nouns. I hope students you understood that. After this we are going to learn the use of the. अब हम इसमें क्या ही learn करने जा रहे हैं? Use of the. The is a definite article. Okay, a and an or a indefinite article. So the can be used with both the singular nouns and the plural nouns. the का उपयोग हम एक वचन संज्ञा वाले शब्दों के साथ भी कर सकते हैं और बहुवचन संज्ञा वाले शब्दों के साथ भी कर सकते हैं. We can use with both. It may be a singular or a plural noun. Then after that is the is also used to talk of a particular or unique person's things in a particular context. जैसे कि आपको कोई सेंटेंस दिया गया है या कोई पैसेज दिया जा रहा है और उसमें कोई पर्टिकुलर मीन्स एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो उस व्यक्ति के साथ भी हम क्या कर सकते हैं? इफ यू आर यूज टू टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर मीन्स यूनिक का मतलब होता है एकमात्र व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में जब बात की जा रही हो, तो तब भी हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज द. Then after this we also use the when a person or a thing is mentioned
the second time. And another thing is that we can use the also. the का उपयोग हम तब भी कर सकते हैं जब हम उसी व्यक्ति के बारे में दोबारा कोई वाक्य बना रहे हो या बोल रहे हो, तो तब हम क्या कर सकते हैं उसी when a person or a thing is mentioned the second time, जब उसी व्यक्ति या व्यक्ति के बारे में कुछ बात की जा रही हो तो तब भी हम क्या कर सकते हैं वहां पे सेकेंड टाइम में भी the का यूज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, I hope you have understood this. Take the screenshot of the students now. Yes students, now on the board you can see when we can use a definite article, means when we can use the. Okay, one by one I am giving the point wise, I am explaining you. It is used before singular and plural noun when the noun is unique, specific or particular. I explained you this one point. Next, second point is that it is used before the names of the direction and the dates of the month. It is used before the names of the direction and the dates of the month. इसका उपयोग हम दिशाओं के नामों के आगे भी हम द का यूज़ कर सकते हैं और महीनों के नाम के आगे भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे कि तारीख लिख रहे हैं 27 ऑफ जुलाई और 24 ऑफ अगस्त. सो 24 जो डेट लिखे जा रहे हैं उनके आगे भी हम क्या कर सकते हैं, द का यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ यूज बिफोर द सुपरलेटिव इन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. अब आपको मैम इसका क्या मतलब है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का मतलब जैसे कि आपको दिया गया टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, मीन्स टॉलर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है और टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है. तो सुपरलेटिव डिग्री, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, इनके शब्दों के आगे भी हम द का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज इट इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ ओशंस, रिवर्स, सीज, माउंटेन, रेंजेस एंड ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, डेजर्ट्स एक्सेट्रा. यहाँ तक कि हम द का उपयोग जैसे कि वी कैन यूज़ बिफोर द नेम्स ऑफ द ओशंस, जैसे कि महासागरों के नाम आते हैं, नदियों के नाम आते हैं, समुद्रों के नाम आते हैं, माउंटेन रेंजेस के नाम आते हैं. तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम अगर आते हैं, आइलैंड्स का मतलब होता है ईजलैंड नहीं है बेटा, ये आइलैंड्स है, ठीक है, एस साइलेंट रहेगा इसमें. तो इनके नामों का जो समूह होता है उनके सामने भी हम द का यूज़ कर सकते हैं. रेगिस्तानों के द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, है ना. तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम द का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, famous buildings and historical events. Even it can be used before the names of them, means इनका इसका उपयोग मीन्स द का उपयोग हम जैसे कि म्यूजिकल जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं म्यूजिक से जुड़े हुए, उनके नामों के आगे जैसे कि गिटार, द तबला, है ना, द सितार, ये जो चीज़ें आती हैं इनके नामों के आगे भी हम द का यूज़ कर सकते हैं. देन आफ्टर दिस न्यूज़पेपर्स के नेम्स जो होते हैं उनके नाम के आगे भी हम द का यूज़ कर सकते हैं. मैगजीन्स अगर हो तो उनके नाम के आगे भी हम द का यूज़ कर सकते हैं. अगर कोई प्रसिद्ध इमारतें हों, बिल्डिंग्स होती हैं, तो उनके नाम के आगे भी हम क्या कर सकते हैं, द का यूज़ कर सकते हैं. एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स, और यहाँ तक कि कोई ऐतिहासिक इवेंट्स भी है तो उनके नामों के आगे भी उन चीज़ों के मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं, जो तारीख वगैरह जो लिखी हुई थी, जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. तो यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कहा गया उसके उस इवेंट के आगे हमने द का यूज़ किया है. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज व्हेन वी शुड नॉट यूज़ द आर्टिकल्स. हमें आर्टिकल्स का उपयोग कब नहीं करना चाहिए. सो देर आर मैनी इंस्टेंसेस दैट व्हेन वी डू नॉट रिक्वायर द आर्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल नेम्स ऑफ कंट्रीज, पर्सन्स, मंथ्स एंड स्पेसिफिक प्लेसेस. जैसे कि देशों के नाम आते हैं, व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं, महीनों के नाम आ रहे हैं. जैसे कि तारीख आ रही, डेट आ रहा है तो तब हम यूज़ करते हैं, लेकिन एक महीनों का नाम आ गया जैसे कि जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, तो तब हम क्या नहीं कर सकते, उसके आगे हम द नहीं लगा सकते. एंड स्पेसिफिक प्लेसेस, जैसे कि किसी जगह का नाम आ गया तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज़ द नेम्स ऑफ मटेरियल्स. किसी भी पदार्थों के नाम अगर आते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और सिल्क, इनके नाम के आगे भी हम क्या नहीं कर सकते, द का यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द जनरल सेंस. अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं जैसे क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. अब यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, जो क्लीनलीनेस आ रहा है और गॉडलीनेस आ रहा है यहाँ पे एक जनरल सेंस के हिसाब से बताया जा रहा है, लेकिन एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है वहाँ पे, है ना. क्लीनलीनेस आ रहा है, गॉडलीनेस आ रहा है, ये क्या हो गया, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ. तो इसके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी हम द का यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट नेम्स ऑफ द स्पोर्ट्स, जो खेल होते हैं उनके आगे,
लैंग्वेजेस भाषाओं के आगे, नेशनैलिटीज़ उनके आगे, जैसे कि इटालियन बोल दिया, माई फ्रेंड इज़ इटालियन एंड लिव्स इन रोम, तो रहता कहाँ है, रोम, तो जगह का नाम, उसके सामने भी हम द नहीं, इटालियन वो भी नहीं लिख सकते हम, उसके आगे भी हम द का यूज़ नहीं कर सकते। एंड फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स, सो द नहीं लिख सकते हम, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स कभी नहीं लिख सकते हम। ओके, देन व्हेन वी आर राइटिंग द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स एट दैट टाइम ऑल्सो वी कांट यूज द, एंड इफ यू आर राइटिंग एनी नेम ऑफ द क्लॉथ्स, क्लॉथिंग के बारे में अगर हम कुछ लिखते हैं, जैसे कपड़े लेके आए हो आप, कोई स्कर्ट लेके आए हो, शर्ट लेके आए हो, पैंट लेके आए हो, साड़ी लेके आए हो, तो उनके नाम के आगे भी हम क्या नहीं कर सकते, वी कांट यूज द। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।